تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو۔ تو ہی اول تو ہی آخر تیرا جلال ہو، تو ہی الفا تو ہی اومیگا تیرا جلال ہو، تو ہی اول تو ہی آخر تیرا جلال ہو، تو ہی الفا تو ہی اومیگا تیرا جلال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو۔ ہر بیماری سے دے وہ شفا تیرا جلال ہو، ہر آفت سے دے وہ چھڑا تیرا جلال ہو، ہر بیماری سے دے وہ شفا تیرا جلال ہو، ہر آفت سے دے وہ چھڑا تیرا جلال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو۔ جلالی قدرت والا تیرا جلال ہو، تو ہی والی تو ہے سہارا تیرا جلال ہو، تو ہے جلالی قدرت والا تیرا جلال ہو، تو ہی والی تو ہے سہارا تیرا جلال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو۔ زندہ خدا ان کی تعریف ہو جو ہمیں بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت ہی کے وسیلے سے ہم اس وقت موجود ہیں، اور اس کی محبت جو ہے وہ لازوال ہے۔ آئیے آج کے زندہ کلام کے لیے خدا ان سے پاک روح کا مسا مانگے، اور مل کر ہم خدا ان کے سندر قدموں پر اپنے سر جھکائیں۔
آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کل کائنات کو بنانے والے خداوند دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتے ہیں اور خداوند جی آپ کی پریز کرتے ہیں، آپ کی مہما کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ بھی تعریف اور سجدے کے لائق ہیں۔ آپ کی پریزنس کے لیے دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتے ہیں اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں، دھنیہ واد کہتے ہیں۔ خداوند آج جو کلام کیا جائے، اس کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں سے 100 گنا پھل پیدا ہو۔ ہیلیلویا۔ خداوند تیرے بندے میں کوئی صلاحیت، کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں جس کے وسیلے سے میں اس زندہ کلام کو پیش کر سکوں۔ اپنے بندے کو پاک روح کا مسا دے اور اپنے بندے کے زبان اور ہونٹوں کا ذمہ لے، اور خداوند جی اپنا پاک روح کے مسا سے اپنے بندے کو بھر دے، اور جب کلام کیا جائے تو خداوند اپنے بندے کے زبان بن، اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سبھی بڑی برکت پائیں۔ خداوند اس وقت بہت سارے بیمار جو رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ڈاکٹروں سے لے سکتے، وہ فیس نہیں دے سکتے، خداوند جی آپ کا پاک شفا برہات ان پر بڑھ جائے، اس لیے کہ آپ شفا دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جو میری بہنیں اور بیٹیاں بے اولاد ہیں، خداوند جی ان کی خالی گود کو بھر دے تاکہ وہ تیرے پاک قدوس نام کے وسیلے سے جو ہے وہ ان کی جو خواہشیں ہیں خداوند اولاد کی، وہ تیرے جلالی اور قدوس نام سے پوری ہو جائیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جو بے روزگار ہیں خداوند ان کو روزگار مہیا کر۔ خداوند جتنے بھی ہم نے درخواستیں خداوند جی آپ کی میز پر رکھی ہیں، خداوند ان کو آپ نے پورا کر دیا ہے، اور خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس لیے کہ آپ قدرت پر خداوند ہیں۔ آپ کے پاک اور جلالی مہیب اور قدوس نام سے جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ پا لیا ہے۔ آمین، آمین۔ آئیے آج کا زندہ کلام دیکھیں۔ متی کی انجیل اس کا 8 باب اور پہلی 4 آیات خدا ان کے زندہ کلام میں سے ہم مل کر دیکھیں گے۔ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ یسوع نے اس سے کہا، خبردار کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تائیں کہن کو دکھا، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ ہیلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کو میں اور آپ دیکھتے ہیں، جس کو یہ قدرت اور اختیار حاصل ہے کہ وہ جس کسی بیماری سے کہتے تھے وہ بیماری جو ہے بھاگ جاتی تھی، وہ بیماری چلتا بنتی تھی۔ کس کے کہنے سے؟ یسوع کے کہنے سے۔ اور پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں نہ کہ بیماریاں بھاگ جاتی تھی، میں اور آپ دیکھتے ہیں وہ جن کے اندر گندی بدروحیں ہوتی تھی، جن کے اندر اب ان بدروحوں نے
जो है उनको जकड़ा हुआ होता था और जिनको पकड़ा हुआ होता था, यीशु के कहने से वो रूहें भी छोड़कर भाग जाती थी। और मैं और आप देखते हैं लश्कर के लश्कर बदरूहों के लोगों में होते थे और वो लश्कर के लश्कर यीशु मसीह जो है वो उनको दूर कर देता था, उनको उन बदरूहों को दूर कर देता था, उन जत्थों गंदी तस्वीरों के जत्थों को वो बांध कर था घड़े में फेंक देता था। यीशु मसीह की शौहरत, यीशु मसीह का चर्चा जो पूरे इस्राएल में और यहूदिया के इलाका में उसका ढंढोरा, उसका डंका बजता था, किसके बायस यीशु मसीह जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मुहैया करता था, हेल्थ मुहैया करता था। और फ्री ऑफ कॉस्ट यीशु क्या देता था, फूड भी देता था, इसलिए कि मेरे और आपके प्रभु को ये शर्फ हासिल था, ये हक हासिल था, उसके पास अख्तियार था, उसके पास पूरा अख्तियार था, उसके पास पूरी अथॉरिटी देखते हैं। और जिस भी बीमारी को वो झिड़कता था, कहता था, वो बीमारी जो है बदनों को छोड़ जाती थी, वो बदन हील हो जाते थे, वो बदन शिफा पा जाते थे। मैं और आप देखते हैं 12 साल की जकड़ी हुई जो लहू बहने के बायस लागर हो चुकी थी और रुपया पैसा वो क्या कर चुकी थी, खत्म कर चुकी थी। मैं और आप देखते हैं ये कितने साल की बीमारी देखते हैं, ये 12 साल की बीमारी हम देखते हैं और ये लागर हो चुकी है, ये वीक हो चुकी है, ये चलने फिरने से कासर है, ये यीशु तक पहुंच नहीं सकती। लेकिन इसने वो चैलेंज कबूल कर लिया। क्यों कबूल कर लिया? इसके सामने एक गोल था, इसके सामने एक माटो था, और वो माटो क्या था, वो गोल क्या था? अपनी बीमारी से चंगाई लेने का, शिफा लेने का। किससे शिफा लेने का? यीशु से शिफा लेने का। और ये उस बड़ी भीड़ में यीशु जो है, मेरा और आपका प्रभु जो है, बड़ी भीड़ के साथ जा रहा था, उसमें ये शिफा लेने की गरज से कूद गई। इसने ये परवाह नहीं की कि मैं तो गिर जाऊंगी, मुझ पर से लोग गुजर जाएंगे और मैं शिफा ना ले सकूंगा। लेकिन इसका ये गोल कुछ और था, इसका इरादा जो है वो टल था। मुसम्मम अमान के साथ ये भीड़ में कूदी हुई थी और इसके ईमान को मैं और आप कितना खरा देखते हैं, कितना मजबूत देखते हैं कि मैं यीशु के पल्लू को छू लूंगी, यीशु के कपड़े को छू लूंगी, यीशु की पोशाक को छू लूंगी तो मैं क्या पा जाऊंगी? शिफा पा जाऊंगी इसके ईमान और अकीदे के मुताबिक। इसलिए कि ये यीशु तक पहुंच नहीं सकती, लेकिन गिरते गिराते हुए ये यीशु की पोशाक को छू लेती है, इसको चंगाई मिल जाती है, इसको बीमारी से शिफा मिल जाती है, इसको बीमारी से रहाई मिल जाती है। और यीशु क्या कहता है कि मुझ में से क्या निकली है? कुव्वत निकली है, ताकत निकली है, मुझे किसी ने छुआ। और लेकिन डिसाइपल क्या कह रहे हैं, वो शागिर्द क्या कह रहे हैं कि आए प्रभु तुझे नहीं पता चल रहा, तू देख रहा है कितना बड़ा जत्था है, कितनी बड़ी मंडली है, कितना बड़ा इकट्ठ है, जो भीड़ आप पर गिर रही है। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि मुझ में से क्या निकली है? शिफा निकली है, मुझ में से जो कुव्वत निकली है। और ये गिरते गिराते हुए उस भीड़ को परवाह ना करते हुए यीशु के सामने खड़ी हो जाती है, जोर पाकर खड़ी हो जाती है।
चंगाई पा कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आए प्रभु, मैं तो लागर हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने तेरा पल्लू छुआ, जैसे ही मैंने आपकी पोशाक को छुआ, मुझे चंगाई मिल गई है। मैं तो आज झूमूंगी, आज मैं नाचूंगी, मुझे कुव्वत मिल चुकी है, मुझे बीमारी से चंगाई मिल चुकी है। और ये बीमारी मेरे प्रभु 12 साल की बीमारी थी, लेकिन मैं आज जो है वह वेला भी करूंगी, नाचूंगी भी, झूमूंगी भी और गाऊंगी भी खुशी के साथ, इसलिए कि मुझे क्या मिल चुकी है, 12 साल की बीमारी से रिहाई और मुक्ति मिल चुकी है। और मुझे कुव्वत तेरी पोशाक के छूने के बायस मिल चुकी है। यीशु ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे क्या कर दिया है, बीबी अच्छा कर दिया है, मेरी बेटी अच्छा कर दिया है। हालेलुया। ये है मेरे प्रभु की पोशाक में कुव्वत, में ये है उसकी पोशाक में कुव्वत। फिर मैं और आप 38 साल के उस बीमार को देखते हैं जिसके जो पार्ट्स काम नहीं करते थे। ये बीमारी जो है ये मुख्तलिफ तरह की बीमारी है और इसको कोई उठाकर उस शिफा वाले हौज में उतार नहीं सकता और ये खुद भी उसमें उतर नहीं सकता। ये हेल्पलेस है, इसका कोई मददगार नहीं है, जिसके बायस ये अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ है, रो रहा है, चला रहा है कि मुझे उठाकर कौन इस शिफा वाले हौज में जो है उठाकर इसमें जो है वो ले जाए और मैं शिफा पाऊं। लेकिन मेरे जो शिफा देने वाला जिंदा खुदावंद वहाँ खुद आ खड़ा होता है और यीशु वो जो 38 साल का ये बीमार है वो उससे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो वो कहता है कि यीशु मैं शिफा पाना चाहता हूं, मेरे पास कोई मददगार नहीं है। और यीशु से उसी घड़ी और उसी वक्त क्या कहता है कि अपनी चारपाई उठा और चलता बन। ऐसे ही मेरे जो वो यीशु से ये जो उसके नाम से उससे बराह रास्त इसने क्या पाली, हीलिंग पाली, शिफा पाली और वो 38 साल की बीमारी इसकी जो है खत्म हो गई। माताजी लेकर आए थे, आंखों में रोशनी ना लेकर आए थे, बंद आंखों के साथ उनका बर्थ हुआ था, उनकी डिलीवरी हुई थी और वो तरीही में आए थे। लेकिन वो क्या करने वाले थे, आंखें ना होने के बाद वो भीख मांग बन गए थे, भीख मांगने वाले बन गए थे। मेरे अजीजों, जो भीख मांगने वाले हैं उनका काम क्या है, बेकारी करना और चलाना। और हर आने जाने वाले से वो क्या मांगते हैं, भीख मांगते हैं। भीख कैसी मांगते हैं, वो जो है पैसे की भीख मांगते हैं। और मैं और आप देखते हैं कि इन्होंने भी यीशु का जो है वो नाम सुना होगा कि यीशु क्या करता है, बीमारियों से चंगाई देता है। यीशु क्या करता है, बीमारियों से शिफा देता है। और इसी गरज से जब इन्हें पता चला कि यीशु जो है यरू के राह के किनारे से गुजरने वाला है, उस राह के किनारे पर यीशु के इंतजार में बैठ गए और ये इरादा लेकर आए थे। ये दो जो जन्म के अंधे थे उस राह पर बैठ गए कि जब यीशु गुजरेगा तो हम शोर करेंगे। लेकिन आज वो क्या है, यीशु से बंद आंखों को खुलवाने के लिए बैठे हुए थे उस शहर के किनारे, उस यरू राह के किनारे। वहां पर रोशनी लेना चाहते थे, वहां पे यीशु का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही मेरा और आपका प्रभु वहां से गुजरा तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ववेला करना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। और आज वो रुपया पैसा नहीं मांग रहे बल्कि वो शिफा मांग रहे हैं।
रो रो कर वो पुकार रहे हैं कि आए प्रभु इब्ने दाऊद खुदा के बेटे, हम पर क्या कर, रहम की दरखास्त करते हैं, रहम की अपील करते हैं। किससे अपील करते हैं? प्यारे प्रभु से अपील करते हैं। और ये अपील कैसी करते हैं? अपनी आंखों में लाइट भरने की, रोशनी भरने की, नूर भरने की। और यीशु को उन पर क्या आ गया? दो अंधों पर दिया आ गई, तरस आ गया, रहम आ गया। और यीशु ने उन दो अंधों की आंखों को छुआ और उनकी आंखें, बंद आंखें जो वो खुल गई और वो उछल पड़े होंगे, वो कूद पड़े होंगे और यीशु की महिमा करते होंगे, यीशु का शुक्र अदा करते होंगे, इसलिए कि वो दूसरों से क्या मताजी से छूट चुके थे। वो बराह रास्त यीशु को देख रहे थे, वो दुनिया को देख रहे थे, अपने आप को देख रहे थे। किसके बायस? वो आंखों में रोशनी जो है यीशु के कहने के बायस, मिलने के बायस, वो हर कुछ, हर चीज को वो देख पा रहे थे। हालेलुया। मेरे अजीजों, सिर्फ और सिर्फ यीशु को ये कुदरत और इख्तियार है, बीमारियों से चंगाई देने का इख्तियार हासिल है। फिर मैं और आप देखते हैं 10 कोड़ियों के कोड़ को यीशु ने साफ किया, लेकिन उनमें से कितने कोड़ी वापस आए? एक कोड़ी शुक्रगुजारी के लिए आया। और क्या बाकी 9 को शिफा नहीं मिली थी, लेकिन वो न शुक्र मिले निकले और शिफा तो उन्होंने ले ली, कोड़ से वो पाक साफ तो हो गए, लेकिन खुदा उनकी उन्होंने शुक्रगुजारी ना की। हालेलुया। ओ मेरे अजीजों, ये कोड़ी जो है, एक कोड़ी या यहाँ पर एक कोड़ी का जिक्र देखते हैं। और मेरे खुदावन यीशु मसीह को ये कोड़ी क्या करता है? आकर सजदा करता है, गिर जाता है और विवेला करता होगा। और ये ईमान के साथ यीशु को क्या कर देता है? सजदा कर देता है। और यीशु ने कहा, क्या पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? और ये रो पड़ा होगा कि प्रभु, लोग मुझे अपने पास नहीं बैठने देते और मुझे शहर से जो है दूर रखा हुआ है, धत्कारा हुआ है, इसलिए कि मेरे कोड़ के बाहर जो स्मेल आती है, बदबू आती है और मुझे कोई भी बिठाना पसंद नहीं करता, मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता मेरे इस कोड़ की बीमारी से। और यीशु ने उसे छुआ और उसका कोड़ यीशु के कहने के बायस वो साफ हो गया, शिफा पा गया। जो वो स्मेल उसकी बॉडी से आती थी, उसके कोट से आती थी, वो सारी की सारी जो है शिफा मिलने के बाद वो स्मेल भी जाती रही और उसका कोट भी जो है वो पाक और साफ हो गया यीशु के छूने के बाद। ये है मेरे खुदावंद को इख्तियार हासिल, ये है उसको कुदरत हासिल कि जिस बीमारी से वो कहता है शिफा हो जाती है। फिर मैं और आप देखते हैं कि यीशु को ना के बीमारियों पर कुदरत और इख्तियार हासिल है, बल्कि मेरे और आपको, आपके प्रभु को बदरूहों को भी निकालने का, भगाने का, था गड़े में फेंकने का इख्तियार हासिल है। एक बदरू को यीशु नहीं बल्कि बदरूहों के जो जत्थे के जत्थे, लश्कर के लश्कर जो है यीशु जो है उनको जो है मलिया मेट कर देता है, उनको निकाल देता है, उनको था गड़े में फेंक देता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके प्रभु को ये कुदरत और अख्तियार हासिल है। मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस कोड़ी से क्या कहा कि अपने जो है ताई जो है वो कहन को दिखा और
جو موسیٰ نے نظر مقرر کی ہے اس کو گزران، اور یہاں پر میں اور آپ دیکھتے ہیں اس کوڑی کو براہ راست جو ہے خداوند یسوع مسیح نے کس بات کے لیے کہہ دیا؟ قربانی گزران، جس کا مطلب کیا تھا؟ شکر گزاری کر۔ لیکن میرے عزیزو، میں اور آپ دیکھتے ہیں جب ان 10 کوڑیوں کو شفا ملی تو ان میں سے ایک کوڑی جو ہے یسوع کے پاس شکر گزاری کے لیے آیا، باقی 9 وہ کوڑی واپس نہ آئے۔ آج میری بہن، میرے بھائی، میرے بہن اور بھائی شفائیں تو یسوع کے نام سے پا لیتے ہیں، لیکن وہ یسوع کے سامنے آ کر شکر گزاری نہیں کرتے، اس کی مہمان نہیں کرتے، اس کی ٹیسٹامنی نہیں دیتے، اس کی گواہی نہیں دیتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ خود کہہ رہا ہے کہ اپنے لیے جو ہے نظر گزران جو موسیٰ نے مقرر کی ہے، قربانی کر، شکر گزاری کر، جس کے معنی ہے میری بہن، میرے بھائی، جب خود میرا اور آپ کا پربھو ہماری زندگیوں میں ہمیں بیماریوں سے چنگائی دیتا ہے، ہمارے اندر جو گندی تاثیریں ٹکی ہوئی ہیں وہ یسوع کے نام سے نکل جاتی ہیں، تو مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کی کیا دینی چاہیے؟ گواہی دینی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور شکر گزاری کن کے ساتھ کرنی چاہیے؟ اپنے عزیزوں کے ساتھ کرنی چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ کرنی چاہیے، پھر ہی میرا اور آپ کا پربھو جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ جس طرح سے ان 10 کوڑیوں کو شفا تو ملی، لیکن ان میں سے ایک کوڑی جو ہے یسوع کے لیے سامنے آیا اور اس نے شکر گزاری کی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے نام سے میں اور آپ جب چنگائی پاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ اس کی جو ہے گواہی دینی ہے۔ خداوند کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین، آمین۔